In this video lecture, we will discuss about class 11, chapter number 6, work, energy and power. And today we will discuss about illustrations, or you can say examples of this chapter. In this lecture, we will complete the example number 6.2, 6.3 and 6.4. Okay, so before starting this lecture, as usual, we will discuss about the last lecture. You know, in the last lecture, we had discussed about the quantity power, right? And you know the definition of power, that was, it is the work done per unit time, or you can say it is the rate of work done, right? And the equation was power P is equal to W by T. Then using differentiation formula, we had also derived one more equation of power, that was force into velocity, and this power is called mechanical power. Okay, then we had discussed about the units of power, joule per second, or you can say watt, or you can say horsepower. And you know the relation between horsepower and watt, that is 1 horsepower is equal to 746, means 746 watts. Okay, and what was the unit? That was discovered by, or you can say invented by, James Watt. Ready? Then we had discussed about the unit of energy, right? Unit of energy or work, that was joule, or you can say watt into second. Ready? Unit of work is watt into second, or you can say joule. And one more unit was 1 kilowatt hour. 1 kilowatt hour, right? 1 kilowatt hour means if you are doing work at the rate of 1 kilowatt in 1 hour, right? You are using your power in 1 hour, that is 1 kilowatt. Then the energy consumed in the form of electricity is called 1 kilowatt hour. And 1 kilowatt hour is equal to, also you can write 1 unit. Ready? You can write 1 unit. 1 unit means the 1 kilowatt power is being consumed in 1 hour, right? And you know also 1 unit, or you can say 1 kilowatt is the unit of energy. Keep in mind, is the unit of energy or work, not power, right? Okay, now we will start the illustration number 6.2. Ready? तो चलो भाई, आप लोगों को जो इलिस्ट्रेशन नंबर 6.2 के अंदर दिया हुआ है, क्वेश्चन ठीक से रीड करना आप लोग। यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन के अंदर, किसी भी एग्जाम्पल के अंदर आप लोगों को फिगर नहीं दी हुई है, ओके? तो यहाँ पे आप लोगों को किसी भी एग्जाम्पल के अंदर फिगर नहीं दी हुई है, तो खास ध्यान रखना, हम लोग अच्छी तरह से पूरा क्वेश्चन कवर हो जाए उस तरह से हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, जिससे आपको बेनिफिट क्या होगा भाई, कि कुछ टाइम के बाद अगर आप लोग इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को, इस सम को रीड करोगे, तो आप लोगों को पूरे का पूरा एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। रेडी? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6.2, यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है एक रेन ड्रॉप। रेडी? चलो भाई उसको हम ड्रॉ कर देंगे। यू आर गिवन 1 रेन ड्रॉप। रेडी? चलो भाई उसका मास आप लोगों को दिया गया है m इज इक्वल टू 1 ग्राम। चलो भाई 1 ग्राम मतलब कितना होगा, 10⁻³ किलोग्राम। 1 ग्राम मतलब कितना होगा, 10⁻³ किलोग्राम। चलो भाई कॉमन सेंस की बात है, जब ये रेन ड्रॉप नीचे की ओर जाएगा तो उसके ऊपर दो तरह के फोर्सेस अप्लाई होंगे, जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, राइट? क्वेश्चन के अंदर कि भाई नीचे की ओर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा, जिसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब रेन ड्रॉप नीचे की ओर मूव करेगा तो उसके आसपास की जो एयर होगी, वो एयर का क्या होगा भाई, ऊपर की ओर एक रेजिस्टिव फोर्स होगा, जो उस रेन ड्रॉप को क्या करेगा भाई, ओपोज करेगा नीचे की ओर जाने से। रेडी? तो वो रेजिस्टिव फोर्स भी आपको दिया हुआ है। ओके, so this raindrop will freely fall under the gravitational force, and when it will reach close to the when it will reach close to the ground,
you are given its final velocity, that is given 50 meter per second. You can see, ready? जब ये ड्रॉप ग्राउंड के एकदम नजदीक आ जाएगा भाई, तब उसकी फाइनल वेलोसिटी आपको दी गई है 50 मीटर पर सेकंड। और ऑब्वियस बात है भाई, यहाँ पे आप लोगों को उसकी इनिशियल वेलोसिटी लेनी होगी 0 मीटर पर सेकंड, राइट? ये जो केस रहेगा वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी? 0, और फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। रेडी? चलो भाई, इस ड्रॉप पे नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा भाई? mg। और इस ड्रॉप पे ऊपर की ओर कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, जो आपकी बुक में दिया गया है? रेजिस्टिव फोर्स। ओके, रेजिस्टिव फोर्स ऑब्वियस बात है कहां पे होगा भाई? ऊपर की ओर होगा। वन टाइप ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हो, हवा का जो फ्रिक्शन लगेगा भाई, राइट, वो कहां पे होगा? उसकी जो मोशन होगी उससे ऑपोजिट। यहाँ पे ड्रॉप की मोशन नीचे की ओर होगी, तो उस पर रेजिस्टिव फोर्स, या तो आप बोल सकते हो हवा का, एयर का जो फ्रिक्शन होगा वो कहां पे लगेगा भाई? ऊपर की ओर। अब नेक्स्ट, ये जो ड्रॉप जहां से गिर रहा है भाई, उसकी हाइट दी गई है 1 किलोमीटर। मतलब कि यहाँ पे आप लोगों को h दिया गया है, h इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। मतलब कितना होगा भाई? 10⁻³ मीटर होगा ना, मतलब कि 1000 मीटर। 1000 मीटर से 1 किलोमीटर से जो रेन ड्रॉप है वो नीचे की ओर गिर रहा है। ओके, अब आप लोगों को फाइंड क्या करना है? आप लोग देखिए, दो चीज आप लोगों को फाइंड करनी होगी। वन, देयर इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड सेकंड, यू हैव टू फाइंड वर्क डन बाय दिस अननोन रेजिस्टिव फोर्स। ये जो रेजिस्टिव फोर्स इस ड्रॉप को ओपोज कर रहा है, उसको बराबर रोकने की ट्राई कर रहा है, उस रेजिस्टिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो भी आप लोगों को फाइंड करना होगा। चलो भाई, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पार्ट नंबर ए, ओके, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, W इज इक्वल टू, चलो भाई अपना पुराने वाला इक्वेशन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलो भाई, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या आएगा भाई? mg आएगा। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? जितनी यहाँ पे आप लोगों को हाइट दी गई है उतना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो आप लोग क्या लिखोगे भाई? यहाँ पे h। बस आप लोगों को सिर्फ डेटा यहाँ पे देख देख के पुट करना होगा। चलो, m कितना होगा भाई? 10⁻³ किलोग्राम। g, चलो भाई यहाँ पे g आप लोगों को दिया गया है 10, कई बार दिया गया होगा 9.8। तो हम लोग हो सके तो हर बार 10 ही लेंगे, जिससे क्या होगा भाई? आप लोग जितना हो सके उतना कम कैलकुलेटर का या तो कैलसी का यूज करो। रेडी? यहाँ पे हम लोग लेंगे 10, 9.8 लोगे तो उस तरह से आंसर आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे 10 ले रहे हैं, राइट? आप लोग 9.8 भी ले सकते हो, तो उस तरह से आंसर आएगा। चलो भाई, एच कितना है? 1 किलोमीटर, मतलब कितना होगा? 10⁻3। रेडी? चलो भाई, 10⁻³ 10⁻+3 कॉट। यहाँ पे आप लोगों को वर्क डन मिलेगा। वर्क डन किसका भाई? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी 10 जूल ऑन द रेन ड्रॉप। रेडी? चलो भाई, अब हम नेक्स्ट बात करें। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई कि mgh, ये तो क्या आ गया भाई? पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन आ गया ना। तो आप लोग सेम चीज बोल सकते हो कि भाई ये जो रेन ड्रॉप होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो उसका भी आंसर क्या आएगा भाई? सिंपल सी बात है, 10 जूल आएगा। ठीक है, अब अगर ये रेजिस्टिव फोर्स इस ड्रॉप पे अप्लाई नहीं होता तो क्या होता भाई? तो उसकी जो पूरे की पूरी पोटेंशियल एनर्जी होती, राइट, वो क्या हो जाती? उसकी काइनेटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाती। एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम लोग सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी चेक करते हैं कि भाई उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी या तो वर्क की बराबर हो रही है कि नहीं। रेडी? चलो भाई, नेक्स्ट बात हम क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हम लिखेंगे भाई, कौन सी काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है? फाइनल, बिकॉज
उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई, जीरो, बिकॉज उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। रेडी, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेन ड्रॉप क्लोज टू ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड की एकदम नजदीक जब पहुंचेगा तब उसकी काइनेटिक कितनी होगी भाई, सिंपल सी बात है, के इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर। चलो भाई कितना आएगा, हाफ m मतलब 10⁻³ एंड उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 50 होल स्क्वायर। चलो भाई कितना होगा, 1/2 इंटू 10⁻³ चलो भाई 50 का स्क्वायर क्या होगा, 2500। ओके, चलो भाई 2500/2 कितना होगा, 1250 इंटू 10⁻³ चलो भाई -3, 3 पॉइंट आप लोग अगर मूव करोगे 1 2 3 आपको मिलेगा 1.25 जूल, 1.25 जूल। चलो भाई ये तो क्या गया, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हो कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल थी एट द हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, वो पूरे की पूरी काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं हो रही है। काइनेटिक में सिर्फ कितनी कन्वर्ट हुई भाई, 1.25 जूल। उसका मतलब क्या हुआ भाई कि बाकी की जो एनर्जी थी वो रेन ड्रॉप की जर्नी के दौरान उसके रेजिस्टिव फोर्स कहाँ से आया भाई, आजू बाजू की एयर से, उसके अंदर क्या हो गई भाई, लॉस हो गई। अब आप लोगों को ऑटोमेटिकली पार्ट नंबर बी मिल जाएगा जो आप लोगों को पूछा गया है। पार्ट नंबर बी में क्या पूछा गया है, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। तो कितना होगा भाई, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, W इज इक्वल टू, चलो भाई अब आप लोगों को क्या करना होगा, एकदम कॉमन सेंस की बात है, 1.25 जो उसकी फाइनल एनर्जी होगी और उसकी इनिशियल एनर्जी क्या होगी भाई, 10 जूल, उसका सब्ट्रैक्शन करना होगा कि भाई 10 में से डायरेक्ट 1.25 हो गया तो बाकी की एनर्जी गई कहाँ, तो बाकी की एनर्जी कहाँ जाएगी भाई, इसकी रेजिस्टिव फोर्स के अंदर वेस्ट हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। रेडी, चलो भाई तो कितना आएगा, -8.75 जूल। रेडी, यहाँ पे माइनस क्या दिखा रहा है भाई, सिर्फ यही दिखा रहा है कि माइनस का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क डन की ऑपोजिट साइड हो रहा है, मतलब कि ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये जो अपना रेजिस्टिव फोर्स होगा वो रेन ड्रॉप पे 8.75 जूल का ऑपोजिट साइड वर्क करेगा, जिससे क्या होगा भाई, उसकी 10 जूल एनर्जी टोटल होगी यहाँ पे, उसमें से इतनी एनर्जी निकल जाएगी, लॉस हो जाएगी और उसके पास सिर्फ 1.25 जूल एनर्जी बचेगी, जिसके मुताबिक उसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई, 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरे का पूरा एग्जाम्पल का आंसर। अब हम बात करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 6.3 की। रेडी, चलो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल रीड करो 6.3 में दिया गया है भाई, एक साइकिलिस्ट है, वो अचानक अपनी साइकिल की ब्रेक मारा है। ब्रेक मारेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा भाई, उसके साइकिल के जो टायर और रोड उसके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। और आप लोग जानते ही हो कि फ्रिक्शन ऑलवेज कहाँ पे होगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट, उसकी जर्नी, उसकी वेलोसिटी की ऑलवेज ऑपोजिट होगा, जो आप लोग 9th स्टैंडर्ड में भी स्टडी कर चुके हो। रेडी, यहाँ पे फ्रिक्शन अप्लाई होगा और वो साइकिल 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करके, रेडी, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करके क्या हो जाएगी, धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगी। रेडी, और जो साइकिल पे रोड ऑपोजिट डायरेक्शन में, आपकी बुक में भी दिया होगा, टिक कर लेना, राइट, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्लियर लिखा हुआ है कि 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, रोड साइकिल पे 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। आप लोगों को क्या फाइंड करना है भाई, कि साइकिल की वजह से रोड पे कितना वर्क डन होगा और रोड की वजह से साइकिल पे कितना वर्क डन होगा। तो चलो भाई यहाँ पे आप लोगों को कई सारे अलग कंसेप्ट सीखने मिलेंगे, इसलिए ये सम आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, राइट। तो चलो भाई यहाँ पे भी हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेंगे, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन समझने में आसानी रहेगी। रेडी, चलो भाई यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रोड की, और उस पे आप लोगों को दी गई हुई है एक साइकिल, ठीक है, और यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई होगा भाई, 200 न्यूटन, और ये साइकिल
10 मीटर का डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई, स्टॉप हो जाएगी। चलो इसमें कोई प्रॉब्लम देख सकते हो आप लोग, राइट। 200 न्यूटन का फोर्स, ये जो रोड होगा वो साइकिल के टायर पे कहाँ पे अप्लाई करेगा भाई, ऑपोजिट, बिकॉज इट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज कहाँ पे होगा, इस साइकिल की जो वेलोसिटी होगी भाई, रेडी, उसके ऑपोजिट होगा। आप लोगों को दो तरह के वर्क डन फाइंड करने होंगे, वर्क डन बाय रोड ऑन साइकिल एंड वर्क डन बाय साइकिल ऑन रोड, रेडी। चलो भाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड वर्क डन बाय रोड। सही में आप लोगों को क्या लिखना होगा भाई, वर्क डन बाय रोड। रोड वर्क डन नहीं करेगा, उसका जो फ्रिक्शन होगा उसकी बात कर रहे हैं, तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, राइट। वर्क डन बाय रोड मतलब कि वर्क डन बाय, सही में आप लोगों को क्या समझना होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑफ रोड, रेडी, ऑन साइकिल। W इज इक्वल टू, यू नो द इक्वेशन, FD cos थीटा। चलो भाई, ये केस हम लोगों ने ऑलरेडी थियरी में भी स्टडी किया हुआ है, रेडी। क्या होगा भाई, F कितना दिया हुआ है, 200। चलो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 10, और यहाँ पे एंगल कितना होगा भाई, cos 180, रेडी। क्यों cos 180 होगा भाई, बिकॉज इसका डिस्प्लेसमेंट राइट साइड हो रहा है, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट साइड लग रहा है, कितना होगा 180। चलो भाई कितना होगा, 2000, और cos 180 कितना होगा भाई, -1। आप लोगों को फाइनली मिलेगा 2000 जूल का वर्क। चलो भाई, यहाँ पे भी माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस बता रहा है कि भाई यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो ऑपोजिट साइड हो रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन, रेडी, ड्यू टू फ्रिक्शन। चलो भाई, तो यार आप लोगों को मिल गया वर्क डन बाय रोड, ध्यान रखना, रोड ऑन साइकिल। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट नंबर बी की, रेडी। एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ। चलो भाई, न्यूटन का थर्ड लॉ सब लोगों को पता ही होगा, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑपोजिट टू ईच अदर एंड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, रेडी। तो चलो भाई, 200 न्यूटन का फोर्स कौन लगा रहा है, आप लोग टेक्स्ट बुक में रीड कीजिए, रोड ऑन द साइकिल। तो मतलब कि साइकिल भी क्या कर रही होगी भाई, सेम 200 न्यूटन का फोर्स रोड पे अप्लाई कर रही होगी। कहां से आपको पता चला, एज पर न्यूटन थर्ड लॉ, the road is applying 200 Newton force on cycle. So cycle will also, ready, cycle will also apply the same, okay, the same 200 Newton force on road. चलो भाई, ये क्या बता रहा है कि भाई रोड 200 न्यूटन का फोर्स साइकिल पे अप्लाई कर रहा है, तो एज पर न्यूटन थर्ड लॉ साइकिल भी उतना ही, मतलब कि 200 न्यूटन का फोर्स क्या करेगी भाई, रोड पे अप्लाई करेगी। तो चलो भाई, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ही बात की थी कि अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उसका मीनिंग थोड़ी ना हुआ कि वर्क डन होगा। वर्क डन कब होगा भाई, मैं फोर्स अप्लाई करूंगा और सामने की चीज का क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। लेकिन आप भी बताइए कि साइकिल जब रोड पे 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगी तो क्या रोड का डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, बट द रोड इज नॉट गेटिंग any displacement due to force of, ready, due to force of cycle। मतलब कि ये जो केस होगा उसका भी डिस्कशन हम लोगों ने थियरी में किया हुआ है कि भाई यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे फोर्स पे अप्लाई हो रहा है भाई 200 न्यूटन का,
लेकिन यहाँ पे जो रोड का डिस्प्लेसमेंट होगा भाई वो नहीं हो रहा है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को वर्क डन कितना मिलेगा भाई, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाई 0 कितना होगा भाई, 0 जूल होगा। रेडी, तो यह गया आपका आंसर। चलो, तो आप लोगों को क्या सीखने मिला भाई कि जो रोड की वजह से वर्क डन होगा वो कितना होगा, -2000 जूल, और साइकिल की वजह से जो वर्क डन होगा भाई रोड के ऊपर वो कितना होगा, 0 जूल। तो यहाँ पे आप लोगों को एक स्टेटमेंट सीखने मिलेगा जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या सीखा भाई कि न्यूटन ने बताया, जो बात की उसने क्या की, फोर्स के लिए बात की, क्योंकि जितना फोर्स हम किसी बॉडी पे अप्लाई करेंगे उतना ही फोर्स वो बॉडी हम पे अप्लाई करेगी। लेकिन कहीं पे भी न्यूटन मरते मरते लिख नहीं गया, राइट, लिख के नहीं गया कि भाई वर्क डन के लिए भी यही अप्लाई होगा। इसलिए आप लोग चैप्टर 5 को क्या बोलते हो भाई, लॉस ऑफ मोशन या तो लॉस ऑफ फोर्स, कि जो न्यूटन ने 3 लॉस दिए वो फोर्स के लिए दिए हैं, वर्क के लिए नहीं। मतलब आप फोर्स के लिए 100% बोल सकते हो कि द फोर्स applied by body 1 on body 2, same force applied by body 2 on body 1। लेकिन वर्क डन के लिए आप लोग नहीं बोल सकते भाई कि द वर्क डन बाय ए ऑन बी इज इक्वल टू वर्क डन बाय बी ऑन ए, जिसका प्रूफ आप लोग क्लियर देख सकते हो कि भाई रोड अगर साइकिल पे 2000 जूल का वर्क कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि साइकिल भी रोड पे 2000 जूल का वर्क करेगी। जो आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे वर्क डन आपको क्या मिला, 0 मिला, यहाँ पे 2000। तो बस यही चीज आप लोगों को यहाँ पे लिख के बतानी होगी, जिससे कुछ टाइम बाद आप लोग रीड करोगे तो आपको याद होना चाहिए। रेडी, चलो भाई यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एज पर न्यूटन्स लॉ द फोर्स applied by body A on body B will be same and in opposite direction for force applied by body B on body A। चलो भाई, ये तो न्यूटन ने लिख के बताया था, राइट, एज पर न्यूटन्स लॉ। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं भाई, फोर्स की, कि भाई जो फोर्स बॉडी ए बॉडी बी पे अप्लाई करेगी वही फोर्स, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी बी बॉडी ए पे अप्लाई करेगी। रेडी, तो फोर्स चलो भाई रोड का साइकिल पे 200 होगा तो साइकिल का भी रोड पे 200 न्यूटन ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वर्क डन के लिए हम लोग ये चीज नहीं बोल सकते, क्योंकि वर्क डन के लिए न्यूटन ने कोई भी लॉ दिया ही नहीं। रेडी, बट द वर्क डन बाय बॉडी ए on body B will not be always same, कि भाई हर बार ये सेम होगा उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन ये तो हर बार क्या होगा, सेम ही होगा। will not be always same as work done by body B ऑन बॉडी ए। ठीक है, मतलब वर्क डन के लिए सिंपल सी बात करें तो फोर्स के लिए न्यूटन्स लॉ अप्लाई हो सकता है, वर्क डन के लिए नहीं। रेडी, वर्क डन बाय बॉडी ऑन बॉडी बी विल नॉट बी ऑलवेज सेम, राइट, इन द केस ऑफ बॉडी बी ऑन बॉडी ए। रेडी, चलो भाई अब हम बात करते हैं लास्ट एग्जांपल नंबर 6.4 के। रेडी, चलो भाई लास्ट सम की हम बात करें, एग्जांपल नंबर 6.4। तो भाई यहाँ पे आप लोगों को मिलिट्री का एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई कोई मिलिट्री मैन अपनी गन में से बुलेट को फायर कर रहा है। रेडी, और वो बुलेट का आप लोगों को मास दिया हुआ है 50 ग्राम, यू कैन सी, एंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 200 मीटर पर सेकंड। चलो भाई उसको हम ड्रॉ कर लेंगे।
रेडी। यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है मास, मास ऑफ बुलेट 50 ग्राम। रेडी, 50 ग्राम मतलब कितना होगा भाई? 50 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ओके, और इस बुलेट की वेलोसिटी आपको दी हुई है 200 मीटर पर सेकंड, मतलब कितना होगा भाई उसका इनिशियल वेलोसिटी। अब आप लोग आगे बढ़िए, ये जो बुलेट होगी वो एक प्लाईवुड या तो एक वुड के ब्लॉक में घुसेगी, मतलब उसके अंदर एंटर होगी, जिसकी विड्थ दी हुई है 2 सेंटीमीटर। अब ये विड्थ का आप लोगों को कोई काम नहीं, इसलिए हम इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। रेडी। नेक्स्ट, जब वो बुलेट उसके अंदर घुस जाएगी और दूसरी ओर बाहर निकलेगी, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई? तो क्लियर बोला हुआ है, द काइनेटिक एनर्जी और यू कैन से द फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी ओनली 10% ऑफ इनिशियल एनर्जी। मतलब कि यहाँ पे अगर हम लोग गैस कर ले उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K1, तो जब ये ब्लॉक में से बाहर निकलेगी घुस के, राइट, तब उसकी काइनेटिक कितनी होगी? सिर्फ जो इनिशियल थी उसकी ओनली 10% होगी। आप लोगों को क्या करना है भाई? उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। फाइनल मतलब कि जब ये बुलेट अपने ब्लॉक में से बाहर निकलेगी तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। चलो भाई, ये बुलेट आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से क्या होगी भाई? ब्लॉक में घुसेगी, राइट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? ये होल हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा भाई? वो बाहर निकल जाएगी। रेडी। तो आप लोगों को क्या करना होगा भाई? उसकी फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करना है। रेडी। आप लोगों को उसकी फाइनल वेलोसिटी मतलब कि V2 फाइंड करना है, और आप लोगों को हीट क्या दिया हुआ है? हीट दिया हुआ है K2 इज इक्वल टू 10% ऑफ K1। ठीक है, K2 इज ओनली 10% ऑफ K1। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरे का पूरा क्वेश्चन मैंने ड्राइंग के अंदर कवर कर दिया है। अब आप लोग कब भी पढ़िएगा, 6 महीने बाद भी पढ़िएगा, आप लोगों को ये पूरा समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट, क्वेश्चन क्या समझा रहा है। ओके, चलो भाई, सबसे पहले आप लोगों के पास इस बुलेट का मास है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग सबसे पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी तो फाइंड कर लेना। रेडी। सबसे पहले हम लोग बात करें ए। रेडी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K1 is equal to, you know the equation, half mv1 square. So half, चलो भाई, m is given 50 into 10⁻³ किलोग्राम and v1 is 200 raised to square. चलो भाई, कितना होगा? हाफ 50 into 10⁻³ चलो भाई, 2 का ओनली 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और यहाँ पे 00 मतलब कितना होगा? 10⁻², और उसका भी स्क्वायर होगा, 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा भाई? 10⁻4। ओके, चलो भाई, यहाँ पे कितना होगा? 54 जा 200, 200/2 कितना होगा भाई? 100, और यहाँ पे 4 -3 पावर कितना हो जाएगा भाई? 10⁻1। मतलब कि आप लोगों को फाइनली मिल जाएगा बुलेट का, फाइनली आप लोगों को मिल जाएगा बुलेट का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। रेडी। जब बुलेट गन में से फायर होगी तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 200 और उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई? 1000 जूल। अब नेक्स्ट बात, चलो, आप लोगों को हीट दिया हुआ है, उसी हीट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पार्ट नंबर बी, वी आर गिवन K2 is equal to 10% of K1। चलो भाई, परसेंटेज कैसे निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूं, राइट। आपको पता ही होगा कि 10% ऑफ K1 मतलब कितना होगा भाई? K1 मल्टीप्लाई बाय जितना परसेंटेज आपको फाइंड करना होगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और डिवाइड बाय ऑलवेज कितना होगा? 100 होगा। चलो भाई, K1 आपके पास रेडीमेड है, हम लोगों ने अभी फाइंड किया 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। चलो भाई, क्या होगा? 2 पॉइंट आप लोग कट कर दोगे, आप लोगों को फाइनली मिलेगा 100 जूल। मतलब कि जब ये बुलेट ब्लॉक में से या तो प्लाईवुड में से जब बाहर निकलेगी तब उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई? 100 जूल होगी, और बाकी की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इस ब्लॉक के अंदर लॉस हो जाएगी। तो
तो आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब आप लोग क्या कर सकते हो भाई, V2 को फाइंड कर सकते हो ना। कैसे फाइंड करोगे भाई, सिंपल सी बात है, आप लोगों को V2 फाइंड करना होगा तो आप लोगों को K2 चाहिए होगा। आप लोगों के पास K2 तैयार है। K2 इज इक्वल टू कितना होगा भाई, हाफ mv2 स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करो, आपको मिल जाएगा आंसर। चलो भाई K2 कितना होगा, 100 इज इक्वल टू हाफ। चलो भाई अगेन m कितना होगा, 50 इंटू 10⁻⁻³ एंड V2 स्क्वायर एज इट इज, जो आपको फाइंड करना है। चलो भाई क्या होगा, 2 सामने की ओर जाएगा, 200 हो जाएगा, 200/50, 200/50। चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक स्टेप ज्यादा, 200/50 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, आपको मिलेगा V2 स्क्वायर। चलो भाई सामने की ओर V2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 54 × 200 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻+3, वेरी -3 ऊपर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +3। आपको मिलेगा V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4000। चलो भाई यहाँ पे भूल मत करना, राइट, रूट कैलसी के अंदर निकाल लेना। 4000 आप भी ट्राई करना भाई, आपको मिलेगा 63.25, राइट। आप लोगों को रूट मिलेगा V2 इज इक्वल टू 63.25 मीटर पर सेकंड। मतलब कि ये जो बुलेट ब्लॉक में से बाहर निकलेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई, 63.25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जब इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या थी भाई, 200 मीटर पर सेकंड, रेडी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि भाई काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ, 10% था तो 90% लॉस हो गया। सेम आप लोग वेलोसिटी के लिए नहीं बोल सकते। तो आपकी टेक्स्ट बुक में और एक चीज उसका आंसर दिया हुआ है कि भाई इसकी वेलोसिटी में कितना परसेंटेज का चेंज आया, जो एग्जाम्पल में मांगा हुआ नहीं है, लेकिन आपकी बुक में डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो वो आंसर कहाँ से आया, हम लोग उसका पूरा प्रूफ करेंगे, और यही चीज आप लोगों को जीनीट के अंदर MCQ में काम आएगी, ठीक है। तो बुक में नहीं मांगा, लेकिन हम लोग फाइंड करेंगे जिससे आप लोगों को उसकी टेक्निक या उसकी शॉर्टकट पता चल जाए। ओके, तो हम नेक्स्ट बात करेंगे डिक्रीमेंट इन वेलोसिटी, ठीक है, डिक्रीमेंट इन वेलोसिटी इन परसेंटेज। चलो भाई आपको पूछा जाए कि भाई वेलोसिटी में कितने परसेंटेज का डिक्रीमेंट आया, ठीक है, परसेंटेज की बात कर रहे हैं। बाकी तो आप लोगों को सिर्फ क्या करना होगा, 200 में से 63.25 को माइनस ही करना है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज की बात की हुई है। तो खास ध्यान रखना भाई, उसकी शॉर्टकट क्या होगी, डेल्टा V/V मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। डेल्टा V/V कुछ याद कीजिए आप लोग, 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 2 रिलेटिव एरर, या तो आप लोग बोल सकते हो फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर के अंदर आप लोग यही इक्वेशन अप्लाई कर रहे थे, डेल्टा V/V। तो यहाँ पे नहीं भाई, कहाँ पे, किसी भी चैप्टर में फिजिक्स के अंदर अगर आप लोगों को डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट मांगा जाए परसेंटेज के अंदर, तो आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई डेल्टा V मतलब कितना होगा, V2 माइनस V1 अपॉन V1 मल्टीप्लाई बाय 100%। ऑलवेज मेरी एडवाइस याद रखना, यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। 1 मतलब उसकी इनिशियल बात होगी। यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है और कोई भी क्वांटिटी होगी, तो आप सेम इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो नीचे क्या होगा, ऑलवेज V1, बिकॉज इसको हम क्या बोलेंगे, एज कंपेरिजन विथ और एज रेफरेंस विथ V1 और इस इनिशियल वेलोसिटी। चलो भाई V2 कितना होगा, 63.25, ठीक है। V1 कितना दिया हुआ है आप लोगों को, 200, रेडी, डिवाइड बाय क्या होगा भाई, 200 एंड मल्टीप्लाई बाय कितना होगा, 100%। चलो आप लोग भी कैलसी में एक बार ट्राई कर लेना, 63.25 माइनस 200, ओके, डिवाइड बाय 200 इक्वल टू आपको मिलेगा 0.6837, आपको मिलेगा माइनस 0.6837 मल्टीप्लाई बाय 100%। चलो भाई लास्ट स्टेप कितना होगा, 100% आप यहाँ पे लगा दोगे, आपको मिलेगा -68%, अराउंड -68%। चलो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइनस यहाँ पे क्यों आया आंसर में, माइनस बता रहा है कि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी के अंदर डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कि उसकी वेलोसिटी 68% डिक्रीज हो गई।
अब आप लोग 200 का 68% लोगे और उसको फिर से इसमें से माइनस कर दोगे, आप लोगों को ऑटोमेटिक 63.25 मिल जाएगा। आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को डिक्रीमेंट इन वेलोसिटी मांगा जाए तो वो आप इस शॉर्टकट से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपने जो एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशन होंगे उसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप लोग कॉल, मैसेज, कमेंट कर सकते हो। रेडी? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।